Hello students, myself Rakesh Misra. This is important video for class 9th students and I am going to talk about short and long type question from Cell the Unit of Life. That is the part 2 video. This is the part 2 video. Listen. In previous video lecture, the similar kinds of video lecture you have find, but that was actually the part 1 video. In this video lecture, as like the previous one, I will talk about the important question from question number 12 onward, because in previous video lecture I have discussed about question number 1 to 11, and in this video lecture I will talk about the question number 12 onward. This is also consists the very important question from sample paper, from NCERT exemplar and from side book also. So without delay timing, let back over the different kinds of question and in order to explain their probable answer. I hope you have a pen paper. In order to write the exact answer along with the video lecture, you should note the question as well as the answer correctly, because this is very important collection of the cytological question, that is very important question of the cell, the unit of life or the fundamental unit of the life. Okay, this is the chapter as the fundamental unit of life, because this is the unit of cell, unit of the body. So cell also known as fundamental unit of life. So without delay timing, let back over the question number 12 onward, and I hope you have clear your concept regarding 1 to 11. If you have any problem from 1 to 11, then make a list of that question. I will discuss in next live classes. Now back to the question number 12. All about question number 11 until the question number 11, that is explain the process of osmosis, is over, and that is all about the process about osmosis is over in previous video lecture. If you have any kinds of problem regarding the osmosis, then you will make the list of that problems. I will discuss in with you in the live session. Keep in mind, osmosis, the process by which the water molecules move from its higher water concentration to lower water concentration, is over in previous video lecture. Now back to question number 13. Draw a well labeled diagram of plant cells and animal cells. Listen, इसको आप अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लांट सेल्स में हमको क्या मिलता है? प्लांट सेल्स में हमको सेल वॉल मिलता है. वेल डेवलप्ड आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगा. एनिमल सेल्स को आप सेल वॉल नहीं बनाएंगे, ठीक है. एनिमल सेल्स को एज यूजुअल जो है इसी तरीके से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद सेंट्रलाइज्ड आप जो है फूड वैक्यूल्स और थोड़ा सा किनारे में आपको क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस बनाएंगे और छोटा सा फूड वैक्यूल्स. इसके अलावा बाकी चीज़ आप सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, तो आपके बुक से इसको बना लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज मैंने बताया था कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में ये आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, यानी कि आपको 8 to 10 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. व्हाट इज सेल थियरी एंड हु फॉर्मुलेट इट. तो पहले हम बता दें कि इसको किसने दिया था. सेल थियरी होता क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले हम ये बता दें कि सेल थियरी को किसने दिया था. देखो, सेल थियरी को प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था. प्लांट्स के लिए MJ स्लाइडेन, लिख लो कॉपी में, MJ स्लाइडेन प्लांट्स के लिए, फॉर पी मैंने प्लांट्स, ठीक है. और थियोडोर श्वान, ये किसके लिए? एनिमल्स के लिए. MJ स्लाइडेन किसके लिए? प्लांट्स के लिए. एंड थियोडोर श्वान, SCHWANN, ये ए है, डबल एन, ठीक है. थियोडोर श्वान और MJ स्लाइडेन. सो क्या लिखेंगे? द सेल थियरी फॉर प्लांट्स was given by MJ स्लाइडेन and cell theory for animals was given by the थियोडोर श्वान. एक्चुअली स्लाइडेन और श्वान दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दो अलग अलग जगह पे सेल की स्टडी कर रहे थे, बट दोनों को एक कॉमन चीज़ें जो देखने को मिली, वो दोनों लोग आपस में जब थियरी को शेयर किए तो पता चला कि दोनों में कुछ ऐसी सिमिलरिटी थी जो प्लांट सेल में भी कॉमन थी और एनिमल सेल में भी कॉमन थी, और वही बाद में क्या बन गई? सेल थियरी बन गई. तो सेल थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेल थियरी के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए. पॉइंट 1, सेल्स आर द
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है किसकी? बॉडी की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स लिख लो कॉपी में। एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी स्टोर इन सेल। एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी स्टोर इन सेल। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं थर्ड की, सेल पॉजेज हेरिडिटरी यूनिट। सेल पॉजेज हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट मीन्स क्या होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच एनिमल, इफ द एनिमल इज ह्यूमन बीइंग दे विल आल्सो एबल टू फॉर्म ह्यूमन बीइंग। आप कभी सोचिए कि इंसान का बच्चा इंसान क्यों होता है, लायन का बच्चा लायन क्यों होता है, टाइगर क्यों नहीं हो जाता है? रीजन क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो लायन के अंदर स्टोर है उसमें उसका बॉडी डिजाइन का इन्फॉर्मेशन भी स्टोर है। इसकी वजह से वो बॉडी डिजाइन का इन्फॉर्मेशन अगले जनरेशन में जाता है, तो अगले जनरेशन में जब पहुंचेगा तो उसको वो बच्चा जो है बिल्कुल लायन का है तो लायन के जैसा दिखेगा, टाइगर का है तो टाइगर के जैसा दिखेगा। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सेल थियरी से रिलेटेड है। ईच सेल्स एबल टू फॉर्म न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यू सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यू सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग न्यू सेल्स। So these are the few points regarding the cell theory. I hope your concept regarding question number 13 is clear. What is cell theory and who formulated? Cell theory, that is 1 to 4 points related to cell theory is important. And who formulated the cell theory? The M.J. Leiden and Theodore Schwann respectively for plants and animals. I hope your concept regarding question number 13 is clear. And this is very important, very important फॉर द साइटोलॉजी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द साइटोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड एटीपी। डीएनए और एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। डीएनए का फुल फॉर्म लिखिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड देखो सही से लिख दो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो किसका फॉर्मूला, ये किसका फुल फॉर्म है? डीएनए का। और एटीपी का लिख लो कॉपी में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये किसका फुल फॉर्म है? एटीपी का। डीएनए का भी फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म है। दोनों का काम भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आते हैं कभी कभी। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी, और इससे क्रोमोजोम बनता है और इसी में जीन होता है। बॉडी जो बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर रहता है। और एटीपी क्या है? एनर्जी क्वाइन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एनर्जी क्वाइन। और ये कहाँ स्टोर रहता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे होता है। F0 F1 पार्टिकल्स पढ़ाया गया था, वो इसी पे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप चैनल से वीडियो पढ़ा होगा, वहाँ से देख लेंगे। फिलहाल एटीपी का क्लियर हो गया और डीएनए का क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इम्पोर्टेंस न्यूक्लियस का क्या है? देखो, न्यूक्लियस कंसिस्ट द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस कंसिस्ट द जेनेटिक मटेरियल that control the overall body design, that control the body design. Listen, it means it carry the essential genetic material DNA in their chromosomes, so that the information of body design is actually controlled by the cell, and the cell later controlled by the nucleus. So the nucleus called as control unit, न्यूक्लियस कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है उसमें डीएनए होता है, और डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है पूरी की पूरी बॉडी डिजाइन को भी बदल सकता है। तो बॉडी डिजाइन का इन्फॉर्मेशन सेल में, और सेल का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे? न्यूक्लियस में स्टोर रहता है। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट टू कैरी द इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन एंड आल्सो कैरी द जेनेटिक मटेरियल। ये नोट कर लीजिए,
जेनेटिक मटेरियल बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 11th में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो गया था। फिलहाल इतना जान दें कि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? एनीथिंग दैट कैन पास द सर्टेन सबस्टेंसेस लाइक वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, दे आर एक्चुअली द पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक, अगर ये सेमी परमिएबल ना रहे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसी वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 2 बार हो चुका है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल्स नीटली। इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अभी ऊपर मैंने बताया था एनिमल सेल का या प्लांट सेल्स का अलग अलग भी पूछता है और एक में पूछता है, ऐसे चांस एक अकेले पूछने का 10 मार्क्स में। ठीक है, चलो आते हैं। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों सेलेक्टिव परमिएबल है? देखो बेटा, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट सेल हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना ही होना है। ठीक है, जो सबसे बाहर का एनवेलप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल एसेंशियल सबस्टेंसेस को ही अंदर आने देता है। सपोज दैट ये एसेंशियल सबस्टेंस है तो वही अंदर आता है, सिर्फ एसेंशियल सबस्टेंस। नॉन एसेंशियल सबस्टेंस जो है जैसे जिस मुंह से आते हैं उसी पैर से वापस लौट जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेलेक्ट करता है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as selective permeability, so that the plasma membrane called selective permeable membrane. Selective means selection and plasma membrane तो सबको पता है, permeable means permission से related है। So every kinds of substances without permission of plasma membrane do not enter into the cell. Only the essential substances that are selected by plasma membrane can able to enter into the cell. This phenomena of this property of plasma membrane is known as selective permeability, so that the plasma membrane called as selective permeable membrane. ठीक है, चलो आते हैं। अब आते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ऊपर मैंने बता दिया था कि क्रोमोसोम के फंक्शन क्या है। क्रोमोसोम पॉसेस द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्रोमोसोम पॉसेस द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड डीएनए पॉसेस द जीन्स एंड जीन्स स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन, store the information of body design, so that the chromosomes control the overall body parts. हमारे बॉडी में ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ये 46 होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 पेयर्स में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर्स में पूछेगा 23 और नंबर में पूछेगा तो 46। नेम द क्लेंसिंग ऑर्गेनेल्स इन सेल। देखो, जो क्लेंसिंग ऑर्गेनेल्स होता है वो राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेंसिंग ऑर्गन्स कौन होता है? राइबोसोम्स। रीजन क्या है कि वो डीएनए, क्योंकि वो डीएनए से, राइबोसोम डीएनए से जो आरएनए बनता है। देखो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्रिटिकल हो रहा है, बस इतना जान लो कि राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ आरएनए, विद द हेल्प ऑफ आरएनए फॉर्म प्रोटीन, form protein. Ribosome with the help of RNA form proteins and use the all amino acids. That's why it called as cleansing organelles. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। How does amoeba consume foods? Amoeba, actually this is the amoeba, and amoeba, suppose that see the food item, then what happen? It generate the false foot like structure. This is known as the pseudopodia. Pseudopodia, listen, and this pseudopodia is actually cover the food object that seen by amoeba, and later these food items move or turn into the body of amoeba. So the amoeba with the help of pseudopodia or false food catch up the food materials. ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। हाउ डज अमीबा कंज्यूम द फूड? बिकॉज ऑफ हैविंग द false foot like structure that is known as the pseudopodia. PSEUD ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। ठीक, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट।
हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कह रहा है कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, कैसे। लिसन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell, and how? Because of having self discovered microscope, because of having self discovered microscope, Robert Hooke discovered the cell by means of a cutting section of cork cell। किसको काट के बनाए थे, कॉर्क सेल। कॉर्क प्लांट का पार्ट होता है जिसको काटने के बाद उनको क्या मिला था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर seen by the Robert Hooke under the normal microscope that are self discovered by Robert Hooke. So Robert Hooke was sometime known as father of cytology because he was credited to discovery of cell। ठीक है, तो लिखेंगे कॉपी में हाउ के लिए, हु के लिए तो हो गया रॉबर्ट हुक, हाउ के लिए, वंस रॉबर्ट हुक मेक अ थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क ही सॉ द हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर दैट वाज लेटर seen by the Robert Hooke as the empty space, that empty space or the room is known as the cellula, later by means of cellula the term cell coined, so the cell get discovered। ये NCERT पेज नंबर 59 में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का अब शुरू हो गया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लाइफ। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होगा, पेज नंबर 59 पे मिलेगा। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को क्यों बोला जाता है, लिसन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट्स बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जब बनती है तो बॉडी को आप बिल्डिंग मान लीजिए, ठीक है, और बिल्डिंग जो बनती है तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या बनता होगा, वॉल बनता है, रूम उसमें होता है। ठीक है, और ये सब कैसे बन पाता है, ये छोटे छोटे ब्रिक्स से, ईंटों से, छोटे छोटे ब्रिक्स से, ईंटों से ये बन पाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसको आप सेल बोल सकते हैं। ठीक है, सो वाई इट कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट्स बिकॉज इट फॉर्म द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और फिजिकल यूनिट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, सो दैट the different kinds of cell gather to form the tissue and later tissue gather to form the organ and organ later system gather to form organ system and the body। So structural units is clear। Now the functional units, listen, every kinds of life process occurs or begin from the cell, like respiration, digestion or nutrition, it begin from the cell। Listen, suppose that if you inhale oxygen, finally it will enter into the cell, and the inside the cells the process of glycolysis as well as the glucose breakdown to form energy, this events happen, means oxidation of glucose occurs in presence of oxygen and the energy produced। so overall हम जान रहे हैं कि नाक से सांस लेते हैं, लेकिन ये हमारे जो ऑक्सीजन है सीधे सेल में आता है और सेल में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है और एनर्जी सेल में स्टोर होती है। सिमिलरली कुछ भी खाते पीते हैं वो सेल में जाता है और सेल में फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, फिर जरूरत के हिसाब से उससे एनर्जी निकलती है और ग्रोथ होता है। तो ओवरऑल हमारा फंक्शनल प्रॉपर्टी भी सेल से एसोसिएट है। और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मिल के बना होता है, बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिल के बना होता है, ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गन से मिल के बना होता है, ऑर्गन फिर टिश्यू से, और फाइनली ये बात सेल पे ही खत्म होती है। जैसे एज लाइक द रेस्पिरेशन की बात सेल पे, न्यूट्रिशन की बात सेल पे। तो ये प्रॉपर्टी तो फंक्शनल प्रॉपर्टी हो गई और ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आई होप आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्या है, हाउ डू सबस्टेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। लिसन, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर मूव करता है, इसको डिस्कस करता है। लिसन, सपोज दैट, अब इधर आ जाइए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सब लोग सुने। सपोज दैट ये आपका सेल है, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा और अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका डिफ्यूजन किधर से किधर शुरू हो जाएगा, हमेशा बाहर से, यानी कि ज़्यादा से कम वाले पोजीशन पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सपोज दैट वाटर अगर सेल में ज़्यादा है, ठीक है, और वो वाटर बाहर कम है तो क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट्स अंदर से बाहर होना शुरू हो जाएगा। मीन्स बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, by means of simple diffusion process the carbon dioxide actually move into the cell by means of simple diffusion process।
and water moves inside the cell by means of osmosis, that is the end osmosis. And if water eliminate from the cell, there will be the x osmosis. Means you can say that the overall osmosis is the process, osmosis osmosis is the process by which water moves in and out of the cell, and the by means of simple diffusion method the carbon dioxide moves in and out of the cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना था और ये हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट सिंपल, किसी भी गैस का मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, और वाटर हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर मूव करता है, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है तो ये कभी अंदर नहीं जाएगा, ये हमेशा बाहर अंदर से ही बाहर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किधर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक तो क्लियर हो गया होगा, 23, 24 तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द क्वेश्चन, द important question and their explanation from 26 onward, and may possible then I will touch to the other important question. Thank you.